Belkhadu. My husband name is Mr. Vineet Patel. I have two daughters. My elder daughter's name is Vaidehi Patel. My young daughter's name is Pavni Patel. There are two persons in my family. Uh, my zodiac sign is Cancer. My blood group is O positive. My hobbies are watching movies, cooking, play or chess with my daughter. Uh, my favorite color pink and blue. Okay, there. Thank you. I would like Bhavna ji, Namrata. Namrata, unmute your mic. Thank you. Hello everyone. Good evening, sir. First of all, I would like to thanks to sir who gave me this platform to introduce myself in front of all you those. And very good evening to all. I am Namrata Dwivedi. I am from Riva, and now I am living in Jabalpur because of my job. And I did my graduation from Riva University. Then I have done my PhD from GCGB University and in biotechnology. After that, I have joined as a RA in JNKB Jabalpur University, and currently I am doing research. Now come to the family. Uh, there is five member in my family, including me. My father name is Dr. Rishi Kumar Dwivedi, and he is an advocate. And my mother is a homemaker, and I have one younger sister and one elder brother. My brother is doing job, and my sister is preparing for competitive examination. And zodiac sign is Capricorn. My favorite color is purple, that was pink, which attracts me every time whenever I see this color. And I love to travel because it is said that travel is a education. Means your education is incomplete if you are not traveling. And I love to hang out with friends. I love to watch movie when I get a time. Now I think it's all. Who is dressed? Abhaji. Good evening, everyone. My name is Abha Gupta. Uh, I live in Nagpur in Friends Colony. Uh, I did my graduate BA from UP, from Muzaffarnagar. I am textile designing diploma from Dehradun in ONGC college. I have two sons. My one son is a psychology student and one is the pharmacy student. Uh, I have my blood group is O positive, and my sunshine is Sagittarian. I like many bright colors, and I like Indian food.
I uh, I am traveling. Uh, Thank you. Who is rest? I'm Rest. Uh, Good evening, respected sir and ma'am. Good evening, guys. My name is Neha Patel from Saprabarki. My my There are my nine members in my family. My first, my father, he is farmer. Second, my mother, he is housewife. She is very religious. Uh, Third, my third and for my uh, elder sister, she names his names Nisa Patel and Nidhi Patel. She is a housewife, uh, and she is married. And five, my elder brother Nitish Patel. His name is Nitish Patel. He is farmer. And six, my younger brother. His name is Abhishek Patel. He is studying. He is very. He sometimes make food very tasty, and he likes driving, long driving, and games with me. And seven, my uh, grandma. She is very cute, and she is my she is very cute and very naughty. And eight, my bhabhi, she is housewife. She name is Shivani Patel, and she is making food very tasty. And nine, last me. My my favorite games. My favorite games play chess, ludo, badminton, uh, carom, सांप सीढ़ी, uh, football. And my zodiac signs is Cancer. My my ideal person, my grandma and my sister. And my blood group A positive. And my I likes I likes gardening, painting, dancing, and animals. I likes animals. My pet animals, parrot, and tortoise, doggy. And my uh, my favorite dishes are my favorite dishes are gravy vegetable. And I am vegetarian. And I like my favorite goddess, Shiv Shankar. And my favorite god is uh, Durga ji. And my favorite hero, Ranbir Kapoor. And my favorite actress, uh, Madhuri Dixit. Okay, thank you. Who is rest? I'm Raj. Hello, good evening, everyone. I'm Sakshi Tiwari. I belong to Patan, but currently living in Jabalpur. I am a student. I study in MSc first year.
I have a graduation. I have a graduation in Hindi language from Jabalpur RDBB University. Uh, I live in nuclear. There are 4 members in my family: my father's mother's sisters and me. My father is farmer, my mother is homemaker, and my sister is teachers, and me, I am student. My blood group is O positive. My hobbies are learning, dancing, playing, and my favorite dish is Manchurians. Thank you. Thank you. Now, I would like to invite Hamadi. Hello everyone. Good evening. You are I mute. am 49 years old. I am my hobbies is music and cooking and a long driving. I have 2 children. This name is Tushita Motwani and Karan Motwani. My husband name is Dilip Motwani. My zodiac signs Cancer. My blood group O positive. Okay, etc. How? Who is rest? Who is rest? Who is rest? I think Vaisali is rest. Good evening, guys. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening, sir. Very good evening, very good evening, very good evening to all. दोस्तों मैं आज सुन रहा था चुपचाप और केवल ताली बजा रहा था और मैं देखना चाहता था कि आप कैसे हैंडल करते हैं इस ऑनलाइन क्लास में 2 लोग मौजूद हैं जो कि ऑफलाइन बैच कर चुके हैं एक निधि है दूसरा शिवांग है और तीसरी नेहा है जिसने थोड़े समय के लिए अटेंड किया था तो दोस्तों ये लोग जानते हैं कि शुरू के आधे घंटे तक मैं क्लास में मौजूद नहीं रहता लेकिन प्रोसेस जारी रहती है आज एक बहुत ही सुखद अच्छी चीज मैंने देखी कि साक्षी जो कि नई है अभी 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन किया है उसने दूसरे का नाम जब पुकारा तो बहुत खूबसूरत तरीके से पुकारा किसी और ने नोटिस किया क्या ये चीज शिवांग ने हाथ उठाया कि उसने नोटिस किया
निधि लगता है वो ठाकुर जी की पोशाक बनाने में व्यस्त रहती है। No, sir. Now, today I am making Shankar Bhagwan. That's why. जय भोलेनाथ। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान सबको दीजिए। दोस्तों, आज आपके बैच में एक नया स्टूडेंट God bless you, sir. थैंक यू शिवांग। आई God bless you, sir. थैंक यू निधि। God bless you, sir. थैंक यू नेहा। हमें पूरी उम्मीद थी, हम चाहते तो यहाँ से माइक बंद कर सकते थे, आई कुड म्यूट माई सेल्फ और फिर सीख सकते थे, किंतु मैंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लास में ये जानकारी सारे बच्चों को है कि जब किसी को छींक आती है तो बाकी जो लोग वहाँ मौजूद हैं उसे गॉड ब्लेस यू बोलते हैं। किसी को पता है ऐसा हम क्यों करते हैं? शिवांग तुम भी भूल गए, निधि भी भूल गई, नेहा No, भी sir. तो बताओ कौन ठीक बताए? है, पर बहुत तेज आती है तो उससे जान भी जा सकती है, इसलिए। थैंक यू शिवांग। निधि तुम क्या कहोगी इस पे? सर, शायद जैसे कुछ भी ऐसा होना वाला रहता है, मतलब कुछ भी, तो उसके लिए मतलब एक दुआ जैसे होता है। नेहा, क्या तुम्हारे बैच में तुमने कभी स्टूडेंट्स को बोलते सुना गॉड ब्लेस यू छींक आने में? सर नॉर्मली सुना है, सर नॉर्मली सुना है मैंने। क्योंकि हम तो हर बैच में कारण बताते हैं। जी सर। तुम्हें याद है? नो, आई फॉरगॉट सर। Sorry, you are mute. Sir, you are mute. थैंक यू निशा, थैंक यू वेरी मच। जब छींक आती है तो व्यक्ति का हृदय मिली सेकेंड के लिए, यानी 1 सेकेंड के भी 100वें हिस्से के में धड़कना बंद करता है, और उसके बाद अगर वो सही सलामत है बंदा तो बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, ऊपर वाला आपकी रक्षा करे। तो जब भी किसी को छींक आए तो आप अगर उधर मौजूद हो तो गॉड ब्लेस यू जरूर बोलिएगा। आज हमारे बीच में एक और नया कैंडिडेट, अ न्यू स्टूडेंट इज इंक्लूडेड। हर नेम इज भावना। भावना, जरा हाँ या ना बोलो और अपना कैमरा ऑन करो। Good evening, sir. My name is Bhavna Singh Thakur. भावना, कौन सी क्लास में हो बेटा तुम? सर, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है मैंने। भावना, कभी स्कूल या कॉलेज में सबके सामने इंट्रो दिया है, अपना परिचय दिया है? यस सर, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में ही दिया है सर। इंग्लिश में नहीं दिया है? नो तो सर। भावना, जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें होती जो हम पहली बार करते हैं। यस सर। तो आज उनमें से एक चीज तुम्हारे सामने है। यस तुमने सर। काफी समय, मतलब आज काफी ठीक समय पे ज्वाइन कर लिया था। तुमने यस सर। सभी लोगों को सुना। यस सर। सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे भावना,
अपना माइक बंद करो। अब तुम्हें बता दें, लगता है तुमने गूगल मीट का ज्यादा प्रयोग हो सकता है ना किया। ये नॉर्मल कॉलिंग नहीं है। हम वीडियो कॉलिंग करते हैं तो उसमें सामने एक व्यक्ति होता है, एक हम होते हैं, 2 लोग होते हैं। लेकिन इस जगह पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और जब बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं तो हम 1 to 1 बातचीत इसमें नहीं कर सकते। हमें पता है कि हमारी आवाज तुम तक पहुंच रही है, तुम सुन रही हो, तुम्हारा एक्सप्रेशन बता रहे हैं, तो यस सर या कोई भी जवाब देना आवश्यक नहीं है। इसमें थोड़ा अभ्यास तुम्हें करना होगा कि तुरंत अपना माइक बंद करो। इसको कहते हैं म्यूट करना, इसकी लैंग्वेज में म्यूट करना कहते हैं। फिर जैसे ही समय आए तुरंत अपना माइक चालू करो, यानी अनम्यूट योरसेल्फ। तो अगर कोई बीच में तुमसे बोलता है कि म्यूट योरसेल्फ, यानी तुरंत अपने माइक को बंद कर लो। और तुम बोलने लगी और ध्यान नहीं रहा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हेमा जी के साथ हुआ था, तो किसी ने उनको बोला था अनम्यूट योरसेल्फ, तो वो समझ गई थी, उन्होंने अपना माइक तुरंत ऑन किया। आपके स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे 4 निशान आप देख रहे हो नीचे की तरफ। आपके बाईं ओर जो है लेफ्ट में जो रेड निशान है, उससे आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, कट जाएगा कॉल। लेकिन एक बार ज्वाइन होने के बाद अगर आप डिस्कनेक्ट हो भी जाते हो तो चिंता का विषय नहीं है। आप फिर से व्हाट्सएप पे जाइए, उसी नीले रंग के लिंक को टच कीजिए, जिसको कि आप लिंक कहते हैं, उसको सही भाषा में कहते हैं URL। अब राइट साइड पे देखिए भावना, आपको 3 बिंदु दिखाई दे रहे होंगे अपने मोबाइल के बॉटम में, यानी नीचे की तरफ। उन 3 बिंदु को टच करो भावना, तो 6 चीजें आपको दिखाई देंगी। लेफ्ट में सबसे पहले लिखा हुआ है इन कॉल मैसेज। अगर आपको बोलना नहीं है, बीच में कुछ चल रहा है और आपको किसी काम से जाना है, तो आप वहां मैसेज टाइप करके भेज सकते हैं। अभी किसी को टच मत करना। बीच में लिखा है शेयर स्क्रीन, ये टीचर के लिए होता है। अगर मुझे आपको कुछ दिखाना है तो मैं शेयर करूंगा स्क्रीन। आप लोग भी दिखा सकते हैं अगर कुछ दिखाना चाहो, लेकिन अभी आप इस ऑप्शन को, इस क्लास के अलावा भी आप किसी को भी गूगल लिंक भेज सकते हो अपनी फ्रेंड को। जैसे हमने आपको भेजा वैसे आप भी भेज सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। ये चीज हम सभी के लिए बोल रहे हैं दोस्तों, चाहे वो हेमा जी हो और जो भी नया हो, आप खुद भी लिंक भेज सकते हैं। आप जीमेल में जाइए, लेफ्ट में जीमेल लिखा रहता है, राइट में नीचे की तरफ रेड कलर से कैमरा बना है और लिखा हुआ है मीट, यानी गूगल मीट। तो आप अपने किसी फ्रेंड को भेज सकते हैं। तो भावना, उल्टे हाथ पे इन कॉल मैसेज लिखा है, हमने वो बता दिया। दूसरे नंबर पे शेयरिंग लिखा है, बीचों बीच तीर का निशान बना ऊपर की तरफ, वो बता दिया। यहाँ तीसरे नंबर पे CC लिखा है, तुम इसको टच करो तो शो कैप्शन आ जाएगा, और whatever I am speaking right now will be coming on your screen. It is coming on your screen. Welcome Bhavna, and welcome everybody, and good evening everybody. But Bhavna, I want to inform you, Google Meet cannot understand Hindi properly. So if I speak Hindi, गूगल कंफ्यूज हो जाएगा, वो कुछ की कुछ लेटर टाइप करने लगेगा, जैसे कि तुम अपनी स्क्रीन पे देख रही। सभी लोग देख रहे होंगे। इफ देयर CC इज ऑन, दे मस्ट बी वॉचिंग whatever is coming on your screen. This is the speciality of Google Meet, and this class is related to spoken.
where sometimes writing is necessary. सपोज हमारी आवाज आपको अच्छे से नहीं आ रही नेटवर्क के कारण, तो दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड। तो अभी मैं कुछ क्षणों के लिए गायब हो गया था, आपने ध्यान दिया होगा। I disappeared for a little while. कुछ क्षणों के लिए मैं गायब हुआ था। एक्चुअली धोखे से मेरा फोन एरोप्लेन पे नहीं जा पाया था, एरोप्लेन मोड पे। अब देखिए किसी का माइक ऑन हुआ है, मुझे समझ में आ रहा है किसी का माइक ऑन हो गया है। हाँ, अब उसने ऑफ कर लिया। स्क्रीन पे हमें 8 लोग दिखाई देते हैं, एक आप और 7 लोग और। लेकिन यहाँ आप राइट साइड में देखेंगे जहाँ निधि लिखा है, निधि जी दिख रही हैं, उनका मुंह नीचे की तरफ है, किसी कार्य में व्यस्त हैं। उनके स्क्रीन के ऊपर 3 अदर्स भी लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ से किसी को भी टच कर देंगे तो ये जो लिखा हुआ आ रहा है वो नीचे के हिस्से पे आने लगेगा और वो 4 बटन गायब हो जाएंगे। The 4 buttons will disappear and the text will be coming here on the blank screen. अगर चेहरे पे वो शब्द आ रहे हैं तो आप हल्का सा कहीं पे भी टच करेंगे तो वो नीचे की तरफ हो जाएगा और आपको हर किसी का चेहरा साफ दिखाई देगा। अच्छा भावना, तुम्हारा पहला दिन है, तुमने जरूर मोबाइल अपना इस पोजीशन में रखा होगा। उसको इस पोजीशन में करना है जिसको क्षैतिज कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ऐसे कर लेना। तुम्हारे मोबाइल में ऊपर पर्दे को खिसकाने के लिए अपन जैसे उंगली से खिसकाते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं। उसमें हो सकता है रोटेट लॉक हो तुम्हारा, तो अगर तुम्हारा फोन ऐसा ना हो तो तुम्हें रोटेशन लॉक हटाना पड़ेगा। वो अगर ब्लू होगा तो उसको टगी वाइट हो जाएगा, या आपने कोई दूसरी थीम अगर चुनी है तो कलर उसका उस पर निर्भर करता है। तो आपको अपना मोबाइल ऐसा करना होगा, क्योंकि आपको व्हाइट बोर्ड नहीं दिखेगा पूरा अगर आपका मोबाइल सीधा है, उसको लेटाना होगा। और आप यहाँ से किसी के भी चेहरे पे डबल टैप कर सकते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। और चूंकि आपको अभी हम व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखेंगे तो वो देखने के लिए आपको हमें डबल टैप करना होगा या पिन करना होगा। आप किसी को भी टच करेंगे, किसी के भी चेहरे को, तो वहां पे नीचे 3 बिंदु दिखाई देंगे आपको, और जैसे आप उनमें से किसी एक बिंदु को टच करेंगे एक वाइट स्क्रीन आपके पूरे मोबाइल पे खुल जाएगी और आप दिखना बंद हो जाएंगे, जिस तरह से अभी हम दिखना बंद हो गए। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इससे अच्छा डबल टैप कर दीजिए। तो भावना, हमारे चेहरे पे आप डबल टैप करो, वो देखना बड़ा हो जाएगा। राइट, हमें तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि तुमने कर लिया है और तुम्हें वो दिख रहा है। अब हम एक चीज और बता देते हैं। डबल टैप करने के बाद अगर आपको जूम करना है, बड़ा करना है, कोई चीज नहीं दिख रही है, तो फिर से आप अगर डबल टैप करेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा। या आप अपनी इस उंगली और अंगूठे की मदद से इसको देखिए, मैं करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जूम हो रहा है, ये जूम आउट हो गया, जूम इन हो रहा है। अब भावना, आप नई है तो हम एक नई चीज भी आपको सिखाने जा रहे हैं। और हमारे पीछे आप देखिएगा, हम अपने मोबाइल का एंगल थोड़ा सा बदल रहे हैं। हो सकता है आपको साफ साफ पूरा ना दिखाई दे, तो आप एडजस्ट करके देखिएगा। पीछे कुछ राशियों के नाम लिखे हुए। दोस्तों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कई बार बच्चे जब हमसे प्रश्न करते हैं कि सर इसका अर्थ क्या होता है, तो इस क्लास की जो प्रोसेस है बेटा ऐसी है, अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का हिंदी कौन बताएगा?
उल्टा। यस। आपको इस क्लास में कुछ चीजें अजीब लगेंगी। थैंक यू निधि। आपने देखा निधि जी ने तुरंत अपने आप को अनम्यूट किया, जवाब दिया और फिर तुरंत म्यूट कर लिया। कई बार हम बोलेंगे नहीं, अपना माइक बंद रखेंगे। उसका कारण ये है कि मान लो तुम निधि जी से क्वेश्चन कर रही हो तो दो माइक ऑन है और हमारा भी माइक ऑन होगा तो फिर बहुत अच्छे से सुना ही नहीं देता। ये प्रॉब्लम है इस ऐप के साथ। हालांकि ये अपने आप को प्रतिदिन इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन सावधानी के लिए हम अपना माइक बंद कर लेते हैं, मीन्स आई म्यूट माई सेल्फ, और फिर हम उंगलियों के या हाथ के इशारे से कुछ चीजें समझाते हैं। जैसे अगर आपने सही बोला है तो हम ऐसा हाथ दिखा देते हैं, अगर आपका सेंटेंस गलत है तो हम ऐसा हाथ दिखा देते हैं। ये सब इमोजीज व्हाट्सएप में आप जानते हो। तो कई बार हम इशारा करेंगे, आपको अजीब से लगेगा कि सर बोल क्यों नहीं रहे। वो इसलिए कि 2 या 3 माइक ऑन है और मैं भी ऑन कर लूंगा तो फिर सब एकदम कचरा जैसा हो जाता है। अच्छा, अब एक समस्या और आती है, सभी लोग सुनिएगा। दोस्तों मैं वाईफाई यूज कर रहा हूँ, 5G नेटवर्क है जियो का, तो मेरा रिसेप्शन तो क्लियर होता है बिल्कुल, मेरा मोबाइल भी लेटेस्ट है। अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है या मेरा चित्र नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके दो कारण हो सकते हैं कि आपके नेटवर्क में स्पीड कम हो गई, या दूसरा कारण ये होता है कि जब मैं मैसेज लिखता हूँ या किसी को पिन करता हूँ उस समय गूगल मेरे चेहरे को बंद कर देता, दिखना बंद हो जाता। और कभी कभी नेटवर्क के कारण भी ऐसा होता है, तो उससे परेशान नहीं होना। अभी आप देखना, भावना सब एक दूसरे का नाम पुकार के उससे पूछेंगे। अब हम निधि से शुरू कर रहे हैं। पहले एक सरल क्वेश्चन करते हैं और नीचे लिखा हुआ भी आएगा तो उसको पढ़ भी सकते हैं। अब चूंकि निधि का नाम निधि के फोटो पर लिखा हुआ है और हम पूछें निधि व्हाट इज योर नेम, तो ये वैसा हो जाएगा जैसे शोले पिक्चर में अमिताभ बच्चन पूछते हैं बसंती तुम्हारा नाम क्या है। तो हम निधि से नाम ना पूछ के जो नहीं लिखा है स्क्रीन पे वो पूछ लेते हैं। और भावना, इस क्लास में वास्तविक उत्तर देने की जगह आप काल्पनिक उत्तर भी दे सकते हैं, वास्तविक भी दे सकते हैं, काल्पनिक भी। अभी देखना है ये लोग काल्पनिक उत्तर देंगे, ठीक है। सभी को सुनना, आखिरी नंबर तुम्हारा आएगा और जहां से राउंड शुरू होता है वहीं आके खत्म होगा। तो तुम्हें अपना जवाब देने के बाद म्यूट नहीं करना है, माइक बंद नहीं करना है, बल्कि किसी और का नाम पुकार के उससे प्रश्न को आगे बढ़ाना है। अभी देखना कैसे होता है। निधि, व्हाट इज योर सरनेम? Sir, my surname is Prodar. निधि, आपका उपनाम क्या है? सर मेरा उपनाम प्रोद्दार है। शिवांग, व्हाट इज योर सरनेम? निधि दीदी, my surname is बोल बच्चन। शिवांग, आपका उपनाम क्या है? निधि दीदी, मेरा उपनाम बोल बच्चन है। नम्रता दीदी, what is your surname? Shivang, my surname is Albert. नम्रता दीदी, आपका उपनाम क्या है? शिवांग, मेरा उपनाम अल्बर्ट है। आभा जी, what is your surname? My surname is Bansal. आभा जी, आपका उपनाम क्या है? मेरा उपनाम बंसल है। नेहा, what is your surname? My surname is Go. Come again, please. Go. Neha voice dropping. अब देखो ईशा जी, भावना,
नेहा के नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो उसकी आवाज चॉप हो रही है, कट कट के आ रही है। नाम चेंज करके, हाँ नेहा आ तो गई। नेहा बेटा कम अगेन। What is your surname? My surname is नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेहा निशा थोड़ी जी। देर, नेहा बेटा रुक जाओ थोड़ी देर, नेटवर्क फिर सही होगा तो तुम जवाब दे देना, म्यूट कर लो, वो किसी और से पूछ लेंगे। पूछ लीजिए किसी और से, नाम लेके। निशा जी, what is your surname? My surname is Kapoor. निशा जी, आपका उपनाम क्या है? मेरा उपनाम कपूर है। साक्षी, what is your surname? My surname is Tiwari. साक्षी, आपका उपनाम क्या है? दीदी मेरा उपनाम तिवारी है। Good morning. Sakshi. Good morning. What is your surname? To whom Hemadi. are you asking? बेटा साक्षी तुम भी नई हो इसमें, तो तुमने क्या किया, नाम पहले ले लिया और माइक 1 सेकंड बाद चालू किया, तो नाम थोड़ी सुनाई दिया। हेमदी। साक्षी जी बोलिए। What is your surname? My surname is Motwani. Didi, please complete the process. नाम क्या? साक्षी का नेटवर्क दीदी, आपका- नहीं आ रहा है। साक्षी, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो दीदी मैं आगे प्रोसेस शुरू आपका करूं? उपनाम क्या है? मेरा उपनाम मोटवानी है। हेलो निधि। What is your name? I'm done. Okay. Who is rest? Who is rest? I'm rest. Neha ji, what is your surname? Neha ji, what is your surname? Surname is नेहा जी, आपका उपनाम क्या है? मेरा उपनाम है। Who is rest? Who is rest? नेहा बेटा, एक नई कैंडिडेट अभी जुड़ी है, सुन लिया होगा, तो उसको ये नहीं पता है कि हु इज रेस्ट का क्या अर्थ है, तो हिंदी पूछ लो। कौन सी? आई एम रेस्ट सर। भावना, हु इज रेस्ट का मतलब होता है कौन बाकी है, कौन शेष। नेहा's network is not working properly. चलो नेहा की जगह मैं पूछ लेता हूँ भावना। भावना, what is your surname? सर माय सरनेम इज सिंह ठाकुर। नेहा, आपका उपनाम क्या है? सर भावना। सर मेरा नाम भावना है, आप नेहा बोल रहे। हाँ सॉरी भावना, आपका उपनाम क्या है? सर मेरा उपनाम सिंह ठाकुर है।
चलो अच्छी एक बात है, पहले तो म्यूट कर लो भावना, थैंक यू। हाँ भावना, कभी ऐसा कोई तुमने फॉर्म भरा है जिसमें 3 अलग अलग कॉलम होते हैं, जिसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया हो तो आज इसको समझ लीजिए। उसमें फर्स्ट नेम दिया रहता है, फिर मिडिल नेम रहता है, फिर सरनेम लिखा रहता है। तो भावना, तुम्हारा फर्स्ट नेम है भावना, मिडिल नेम है सिंह, और ठाकुर जो है वो तुम्हारा सरनेम। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। सही जगह बताने की जरूरत पड़ी तो मैंने बताया। ठीक है, अब भावना एक बार तुम पूछो हु इज रेस्ट, तो कोई बाकी होगा तो वो जवाब देगा। Who is rest? भावना, कई बार क्या होता है कि माइक ऑन और ऑफ करने की आदत तो होती नहीं है अपनी, तो हम लोग कुछ सेकंड तक इंतजार कर लेते हैं। इसलिए मैंने अपनी बात चालू कर दी अपना माइक ऑन करके, कि अगर कोई शेष होगा, क्योंकि स्क्रीन पे तो 7 लोग देख रहे हैं, तुम्हें मिला के 8, लेकिन स्क्रीन के पीछे 3 लोग मौजूद हैं, और वो तब तक स्क्रीन पे नहीं आएंगे जब तक वो बोलेंगे नहीं। ये इस ऐप की विशेषता है, जो बोलता है वो स्क्रीन पे आता जाता है, और जिसने पहले बोला है वो पीछे चला जाता है स्क्रीन के। तो भावना, इतनी देर तक कोई उत्तर नहीं आया, इसके मतलब कोई रेस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हें प्रश्न तो पूछना है, तो तुम बेटा हमसे पूछ लो। Sir, what is your surname? भावना, माय सरनेम इज बॉन्ड। सर, आपका उपनाम क्या है? मेरा उपनाम बॉन्ड है, एंड माय नेम इज जेम्स। आई एम जेम्स बॉन्ड। ओके, थैंक यू सर। हाँ भावना, हम अगला राउंड शुरू करते हैं। अभी आपने देखा जब हेमा जी किसी से बातचीत कर रही थी, उसी समय हेमा जी के घर में उनके रूम में कोई फोन बज रहा था, और सामने से कोई कुछ पूछने आया था उनसे या कुछ बताने आया था, तो उनका ध्यान वहां चला गया। तो इस क्लास में अगर आपका ध्यान जरा सा भी भटका, ऐसा सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि हेमा जी एक माँ है, एक पत्नी है, ये दायित्व बड़े होते हैं। हो सकता है एक बहू हो, कंबाइंड फैमिली हो, तो कभी भी कोई भी आ जाता है, आपको सेपरेसी नहीं मिलती है, प्राइवेसी नहीं मिलती है हर किसी को। कई बार कोई आपके पास अलग से रूम नहीं है और आप अलाउड भी नहीं होते। कई बार ऐसा लगता है कि अरे आप कौन सी बड़ी बात कर रहे हो, तो लोग उसको महत्व नहीं देते। उनको लगता है अरे इस उम्र में इंग्लिश सीख रहे, क्या जरूरत है, घर का काम करो, बच्चों की देखभाल करो, पति को ब्ला 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 ब्ला, है ना। अब भावना, जैसे तुम हो, एक स्टूडेंट हो, तुमने घर में बता दिया कि इंग्लिश सीखना जरूरी है, भविष्य में काम आएगी, तो तुम्हारे मम्मी पापा उसको महत्व देंगे या घर वाले महत्व देंगे। ठीक है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए, नम्रता जी जो है वो जॉब करती हैं, बहुत अच्छे जॉब में है, सम्मानीय जॉब है, कभी हम फिर बात करेंगे, वो वैज्ञानिक के तौर पर है। तो अब वो, उनके लिए इंग्लिश, वो बोलती हैं इंग्लिश अच्छी बोलती हैं, लेकिन और उसको इम्प्रूव करना चाहती है, और वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए उनके पास कोई डिस्टरबेंस नहीं है। भावना, आर यू मैरिड और सिंगल? सॉरी नम्रता, सॉरी भावना नहीं, नम्रता, आर यू मैरिड और सिंगल? Sir, I am single. ओके, तो अभी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है कि कोई डिस्टर्ब करने आए, तो ये पूरा कॉन्सेंट्रेट करके क्लास करते हैं। लेट्स स्टार्ट सेकेंड राउंड। पीछे तुम्हें दिख जाएगा, नहीं तो काल्पनिक भी बोल सकती हो बेटा। निधि, व्हाट इज योर सन साइन? इसमें शाह नहीं बोलना है, शक्कर वाला, सा सरोते वाला बोलना, ध्यान रखिएगा। SIGN, साइन।
आपकी स्क्रीन पे आ रहा है सनसाइन। निधि, व्हाट इज योर सनसाइन? Sir, my sun sign is Scorpio. निधि, आपकी राशि कौन सी है? राशि कौन सी है? Sir, मेरी राशि वृश्चिक है। शिवांग, what is your sun sign? Nidhi Didi, my sun sign is Leo. शिवांग, आपकी राशि कौन सी है? निधि दीदी मेरी राशि से है। नम्रता दीदी, what is your sun sign? Sivang, my sun sign is Libra. नम्रता दीदी आपकी राशि कौन सी है? Sivang, मेरी राशि तुला है। रोशनी, what is your sun sign? Neha, what is your sun sign? My sun sign is Cancer. नेहा, आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि कर्क है। हेमा जी, what is your sun sign? My sun sign is Cancer. हेमा जी, आपकी राशि Sorry. कौन सी है? सॉरी, राशि जिसने भी बोला सही बोला। कर्क। हेमा जी, कैंसर, का में एक ही मात्रा और बिंदी। कैंसर, हाँ, जो शरीर में रोग होता है, कैंसर। वही राशि का नाम। ओके सर, मेरी राशि कर्क है। Come again please Hema ji in English. भावना जी, हेमा जी, what is your sun sign? my sunshine is Cancer. वेरी नाइस। हेमा जी, आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि कर्क है। साक्षी जी, व्हाट इज योर सनशाइन? My sun sign is Leo. साक्षी जी, आपकी राशि कौन सी है? Please wait Hema ji. Come again Sakshi didi. नेक्स्ट भावना जी, व्हाट इज योर सनशाइन? My sun sign is Sagittarius. भावना जी, आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि धनु है। भावना, कोई नाम दिख रहा है स्क्रीन पे बेटा? नहीं दिख रहा है तो पूछो, हु इज रेस्ट? Who is rest? I am rest. निशा जी और आभा जी ने बोला, आप किसी एक का नाम चुन लो तुम। निशा जी, what is your sunshine? My sun sign is Leo. निशा जी, आपकी राशि क्या है? मेरी राशि सॉरी, दोस्तों, पहला दिन है तो अभी अपन नहीं छेड़ते। बेटा आभा, तुम्हें और अच्छे से सुनना होगा। सॉरी भावना, और अच्छे से सुनना होगा। हिंदी में तुमसे गलती हुई है, कोई बात नहीं, अभी चला लेते हैं। इट विल डू। आभा जी, what is your sun sign? My sunshine is Sagittarian. आपकी राशि सेजिटेरियस Sagittarius. जी। आपकी राशि कौन सी है? Come मेरी again. राशि धनु है। Who is rest? ओके आभा जी, इफ नोबडी इज रेस्ट यू कैन आस्क मी। Sir, what is your sunshine? माय सनशाइन इज, मैं जानबूझ के वो नाम ले रहा हूं जो किसी ने नहीं लिया है। पाइसेस। सर, आपकी राशि क्या है? हाँ आभा,
तुम्हें एक बहन की प्राप्ति हुई है, आगे हम बताएंगे कैसे। ये हम भावना से बोल रहे हैं। आभा जी ने भी वही गलती की है जो भावना ने की थी, लेकिन भावना ने पहले दिन होने के कारण वो गलती की थी और आभा जी ने कई दिन होने के बाद वो गलती की। लेकिन आभा सुनना तुम भी, भावना तुम भी सुनना, आभा जी आप भी सुनिएगा और हेमा जी आप भी सुनिएगा कि मिस्टेक्स आर रिस्पेक्टेड इन दिस क्लास। आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया है, मिस्टेक्स आर रिस्पेक्टेड इन दिस क्लास। इस क्लास में गलतियों को सम्मान दिया जाता है, अपमान नहीं किया जाता है, क्योंकि आप सीखने आए हैं, गलती होगी, होने दीजिए। इस क्लास में गलतियां करो, खूब करो, 100 बार करो, 1000 बार करो, बस इतना ध्यान रखो एक गलती दोबारा मत करो। और ये जो नाम लिखे हुए हैं इसका किस्सा हल्का सा हम बताते हैं। आप नीचे देखिएगा, उसमें उस बच्ची का नाम लिखा हुआ है, उस स्टूडेंट का। उसने हमसे प्रश्न किया था कि सर राशियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो मैंने सीधा जवाब नहीं दिया। मैंने बोला बेटा तुम्हारे घर में कोई तो पेपर आता होगा, जबलपुर की हो, भास्कर आता होगा, नवभारत, देशबंधु, नवीन दुनिया, कोई सा नहीं, तुम देखना उसमें साइड में इंग्लिश लिखा रहता। तो दूसरे दिन हमने बोला कौन लिख के लाएगा, तो 4-5 लोगों ने हाथ उठाए। दूसरे दिन कुछ लोग लिख के लाए, इंग्लिश और हिंदी दोनों। तो उनमें से एक को हमने बुलाया, भावना वो तुम्हारे ही जैसी बच्ची थी, लेकिन उसकी हाइट कम थी तो ऊपर तक पूज नहीं रहा था। बोलती सर मैं कैसे लिखूं। तो मैंने बोला चेयर रखो और ऊपर चढ़ जाओ, लिखो। और उसका नाम आपको यहाँ नीचे देखने मिलेगा। मैं स्क्रीन को जूम कर रहा हूँ, आप और जूम कर सकते हैं चाहे तो। सौजन्य से पूना, ये सुबह 8:30 से 10 बजे के बैच में आती थी। ये पूरा आपको साफ साफ नहीं दिखेगा, थोड़ा सा मिट भी गया है, और ये इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है कि हम आपको, बस हमने ये बताया कि इस क्लास में बहुत सारी चीजें हमारे बच्चों के सौजन्य से यानी उनके प्रयासों से मौजूद है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक कोई चैप्टर शुरू नहीं किया है भावना इस क्लास में। राइटिंग वर्क भी 2 दिन पहले ही शुरू किया है। अब हम राइटिंग वर्क में आगे बढ़ते हैं। शिवम, व्हाट वाज द लास्ट वर्ब? The last verb was have, that is लेना. थैंक यू बेटा शिवांग, यही सवाल तुम निधि दीदी से करो और पूरा घूमेगा। निधि हिंदी दीदी, एक बार कर देते हैं शिवांग, उसके बाद हिंदी मत करना, यस सर. ठीक है? और किसी को लगे तो वो निसंकोच बोल देना कि भैया कंप्लीट द प्रोसेस। उसका मतलब होता है प्रक्रिया पूरी करें, तो व्यक्ति हिंदी भी पूछ लेगा। संकोच मत करना इस क्लास में बिल्कुल। हम एक बार कर देते हैं। पिछली वर्ब कौन सी थी शिवांग? तो पिछली वर्ब लेना थी, जिसका इंग्लिश है. हिंदी मत करना शिवांग, है ना? थैंक यू। निधि दीदी, what was the last verb? Shiva, the last verb was lena, that is have. Namrata, what was the last verb? Nidhi, the last verb was had. Sorry, come again. The last verb was had. Sorry. So, Is it incorrect? come again. The last verb was had. So, what should I do? हाँ, मैं मदद करता हूँ। HAVE, हैव मूल रूप है क्रिया का, तो हमें वही बताना होता है नम्रता। हैड सेकंड फॉर्म है और फिर से हैड थर्ड फॉर्म है। लिखा यहाँ हैड आ रहा है और
आवाज क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि हम साफ सुन सके, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। एक बार और पूछ लो, कोई बात नहीं, कम अगेन। Namrata, what was the last verb? Nidhi, the last verb was have. Is it right? Neha, what was the last verb? The last verb was have. Abaji, what was the last verb? Abaji, The last verb was have. Bhavna ji, what was the last verb? The last verb was Have. the last verb was have. 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 Okay. Have means lena. Okay. Thank you. Sakshi, what is the last verb? The last verb is the last verb. Last verb was have. That is Lena. Hamadi, what was the last verb? The last verb was have. Who is rest? rest. Nisha ji, what was the last verb? The last verb was have. Neha, I am done. who is rest? Nisha, if nobody is rest, you can ask me. Okay, sir. What was the last verb? Nisha, the last verb was have, that is Lena. Okay, sir. थैंक यू निशा। हेमा जी, आज आपने महसूस किया कि आज आपसे एक बार में बनूं? Yes, sir. तो मैं एक फिल्मी डायलॉग बोलूं? हाँ सर। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। ओके सर, थैंक यू सर। ये अमिताभ बच्चन जी के द्वारा बोला गया है डायलॉग, और वो मंदिर में जाते हैं उस फिल्म में। वो मंदिर कभी नहीं जाते, उसमें जो रोल अदा करते हैं, और मंदिर में जाके शंकर जी से बोलते हैं आज खुश तो बहुत हो गए। पुरानी पिक्चर है, हो सकता आपने देखी हो। सर मुगामो खुश हुआ, ऐसे कुछ है ना? ये तो नई वाली पिक्चर का है। हम बहुत पुरानी अमिताभ बच्चन की, किसी को याद है बेटा? नाम बताओ उस पिक्चर का। शान पिक्चर का है, मुगामो खुश हुआ। ये तो अभी की पिक्चर है 70-80 की। हम उसके पहले की पिक्चर बता रहे हैं। बाकी सब तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने तो नहीं देखी होगी कंफर्म। एक आपसे थोड़ा सा उम्मीद थी, आभा जी से। वैशाली जी आज है नहीं। आभा जी देखी है ये पिक्चर? यस सर। नाम याद है पिक्चर का? नहीं। निशा तुमने तो देखी नहीं होगी, नेहा तुमने भी नहीं देखी होगी, नम्रता ने भी नहीं देखी, साक्षी नहीं, भावना, और सबसे शायद छोटा सर लवारिस। नहीं, लावारिस का भी नहीं है। चलिए हम आपको एक फील्ड वर्क देते हैं। पिक्चर का नाम ढूंढ के व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको मिलेंगे 7 करोड़, 7.5 मिलेंगे, ठीक है? व्हाट्सएप कीजिएगा कि ये डायलॉग किस फिल्म का है। आप गूगल से पूछिएगा
कि हिंदी में भी आपको मालूम है गूगल मीट भले इंग्लिश हिंदी नहीं समझता, लेकिन गूगल हिंदी समझता है। आप ऐसा माइक्रोफोन दबाइए, बोलिए आज तुम खुश तो बहुत हो गए, ये किस फिल्म का डायलॉग है। यूट्यूब में भी सर आप मैं हाँ आई ट्राई नम्रता, हाँ सर जंजीर दलजीर, जंजीर जंजीर फिल्म का होगा, हो सकता है जंजीर। हमें अभी सर कूली कूली पिक्चर का तो नहीं है? कूली कुली का नहीं है। और दीवार दीवार तो नहीं है। सर ये कंटिन्यू एक दो पिक्चर में ये है करके डाला है उसका अभी तक। हाँ, अपन खोजेंगे, खोजबीन करके जो उत्तर सबसे पहले सही रहेगा उसको 7.5 करोड़ और बाकी के बाद बाकी लोगों को बांट दिए जाएंगे, ठीक है। तो हम आज राइटिंग वर्क में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेटा भावना, तुम 200 पेज या 200 से ज्यादा का A4 साइज रजिस्टर लेना। देखो नीचे लिखा हुआ है A4 साइज। थोड़ी उसकी चौड़ाई ज्यादा रहती है, जो हम दिखा रहे हैं वो A4 साइज नहीं है, A3। तो A4 साइज का रजिस्टर लेना। और पीछे इस क्लास में चीजें उल्टी हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले तुमने सुना, तो हमने इनको पीछे से लिखवाना शुरू किया, एकदम पीछे से नहीं। पीछे हमने इनसे 20 पेज छुड़वाया और एक पेज को ऐसा मुड़वा दिया। तो इसमें अपन क्रियाएं लिखेंगे, वर्ब्स लिखेंगे। आज हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं और आप सभी से निवेदन है, आप अगर रफ में लिख रहे हैं तो कहीं पे भी लिख लीजिए, जहां मर्जी हो। फेयर में लिख रहे हैं तो आप फिर से 20 पेज छोड़िए और फिर एक पेज को ऐसा मोड़ लीजिए और यहां पे लिखना शुरू कीजिए। हम फिर से बता देते हैं, पीछे के 20 पेज क्रियाओं के लिए 1 2 3 4 कॉलम, फिर एक पेज को मोड़ लीजिए, फिर 20 पेज छोड़िए, फिर एक पेज को मोड़ लीजिए। यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे इंटरेक्टिव सेंटेंसेस एंड इडियम्स। और भावना बेटा, इंटरेक्टिव सेंटेंस का अर्थ होता है बोलचाल का वाक्य, जो रोज बोलचाल में काम आए उसको कहते हैं इंटरेक्टिव सेंटेंस। और इडियम का अर्थ होता है मुहावरा या लोकोक्ति या कहावत। तो एक इंटरेक्टिव सेंटेंस और एक इडियम, हम इनको अभी तक हमने कुछ बुलवाए बस है और बोर्ड पे लिखवाया था, हमने लिखने के लिए इनको नहीं बोला। जैसे हम पूछ लेते हैं, अभी समय क्योंकि पर्याप्त हो गया है तो हम पूछ लेते हैं दोस्तों, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट वाज द फर्स्ट इंटरेक्टिव सेंटेंस? Sir, the first interactive sentence was "Here you are." वेरी नाइस। अब अपन एक गेम खेलते हैं, काल्पनिक गेम। शिवा, आप किसी का भी नाम लेना और उनको कोई चीज देने का ऐसा एक्शन करना और बोलना दीदी हियर यू आर, और फिर बोल देना ये लीजिए। इस बार हिंदी नहीं बोलना, हियर यू आर का अर्थ है ये लीजिए। किसी का भी नाम लो और ऐसे बोल देना उसको हियर यू आर, और वो जिसको भी देगा हम देखते हैं वो क्या रिस्पॉन्ड करता है। स्टार्ट। Sakshi di, here you are. Come again, Sivan. शिवांग, तुमने नई वाली दीदी का नाम पुकार लिया बेटा, नम्रता दीदी का नाम पुकारो। Namrata didi, here you are. थैंक यू शिवांग। Come. निधि, here you are. Oh, Amrita, thank you so much. Abhaji, here you are. Thank you, Nidhi. Hema ji, there you are. Sorry. Here you are. Abhaji, you are not looking. What are you giving? Oh, sorry, sorry.
Nisha ji, here you are. Sakshi ji, here you are. Sorry. Thank you. Thank you, Ava ji. Sakshi ji, here you are. Thank you, Didi. Neha di. Neha di, here you are. Thank you, Sakshi ji. Hema ji, here you are. Who is rest? Who is rest? I am Rest. I am also Rest. Sorry, I forgot आपका नाम क्या? भावना, देखो लिखा है BHAV। भावना जी, भावना here जी, you are. here you are. Thank you, Neha. Who is Rest? Shivank. Shivank, here you are. Hema Didi is also Rest. Actually, please. Shivang, you are very low. You are not audible clearly. Bhavna Didi, Hema Didi is also Rest. तुम बोल देना हेमा तो हेमा दीदी से क्या दिक्कत हेमा है ना? हाँ बोल दो भावना। Hemadi, here you are. Thank you, Bhavna. Who is Rest? I am Rest. Shivang, here you are. Thank you very much, Hema Didi. You are not clearly audible. Thank you so much, Hema Didi. हेमा जी बधाई हो, आपको स्टील का ग्लास मिला है। और उसमें पानी है कि नहीं है? खाली गिलास? नहीं, वो एम्प्टी है, फिलहाल खाली है। मोबाइल खराब हो जाता है इसलिए पानी भर के नहीं दिया। भावना, तुम्हारे आने से एक बड़ी अच्छी बात हुई, तुम्हारे आने से हुई या जैसे भी हुई है, लेकिन तुमने ध्यान दिया होगा बेटा भावना कि इस क्लास में वास्तव में हमें एंजॉय करना है, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं लर्न विथ फन। लर्न विथ फन, हमें एंजॉय करते हुए सीखना है। तुम जैसा कि निधि को देखती हो, नेहा को देखती हो, नेहा आज बड़ी अच्छी लग रही, तुम्हारे आने से हो सकता है वो उसका प्रोफाइल भी अच्छा है, नहीं तो जब वो अपना इंट्रो दे रही थी किसी ने देखा होगा, इतनी दिखाई दे रही थी, छत पे थी वो, और एक प्रोफाइल एकदम गड़बड़ था। और बीच में हेमा तुम्हारा प्रोफाइल काफी गड़बड़ हुआ था, अभी तुम्हारा प्रोफाइल बिल्कुल सही है। प्रोफाइल का मतलब होता है दोस्तों आप कैसे दिख रहे हैं, थैंक यू सर। कितना दिख रहे हैं। तो आपको खुद भी तो दिखता है कि मैं इतना, जैसे हमें मालूम है मैं इतना दिख रहा हूँ और मैं बिल्कुल बीचों बीच हूँ, मेरे दोनों तरफ करीब करीब बराबर का गैप है। तो दिस इज प्रोफाइल। तो आपको अपना प्रोफाइल सही रखना। जैसे निशा जी का प्रोफाइल, अब मजबूरी क्या है, वैसे तो शिवांग ने वो भेजा था, घर में बना लिया। अब शिवांग थोड़ा सा जुगाड़ वाला है, इंडियन जुगाड़, तो उसने तार को मोड़ पाड़ के पता नहीं काय से बढ़िया एक स्टैंड बना लिया, अपने मोबाइल को उसमें लगा लिया, और उसने एक छोटी सी लाइट भी बनाई है, और जिससे केवल उसके चेहरे पे लाइट पड़ती थी अभी पिछले 2-3 दिनों तक, और पीछे बिल्कुल ब्लैक दिखता था। क्या होता है कि अब जैसे ये तो हमारी क्लास है तो यहाँ व्हाइट बोर्ड दिख रहा है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हर किसी के घर में एकदम डेकोरेटेड तो नहीं होता है, तो पीछे का जो कबाड़ दिखता है तो उससे अपने को खराब है।
देखने वाले को नहीं लगता बेटा शिवांग हम बता दें, या जितने लोग बैठे हुए देखने वाले 1 सेकंड के लिए सोचते हैं और उसके बाद फिर वो इंटरेक्टिव रीडियम और क्वेश्चन और आंसर की ओर बढ़ जाते हैं। तो हमें ज्यादा नहीं सोचना है कि किसको कैसा लग रहा है, ठीक है। आप जैसे भी है कंसंट्रेट कीजिए मूल विषय पे, ना कि दिखने पे दिखाने पे। इस पे कौन, हाँ आज हेमा जी का प्रोफाइल भी बड़ा अच्छा है, बैकग्राउंड में बढ़िया वो दिखाई दे रहा है और उसके बीचों बीच वो बैठी हुई हैं, सेंट्रलाइज हैं, सोफे पे बैठी। अरे शर्मा थैंक यू गई सर। हेमा जी। सर मेरा लैपटॉप हाँ हाँ नहीं, मैं लैपटॉप आज लेके बैठी हूँ, आज उसमें ओ, लिंक जोड़ के रखा है। हाँ तो बहुत अच्छा प्रोफाइल है आपका, बिल्कुल। और हमने नेहा थैंक निधि यू को, सर। वेलकम, हमने निशा को या किसी को सलाह दी थी कि अपने यहाँ गांव में कनस्तर होते हैं, या पैकिंग के कोई डिब्बा हो या पेटी हो, उसके ऊपर डिब्बा डिब्बा रख के एक बढ़िया अपनी हाइट बना लीजिए और मोबाइल को रखने के अच्छे से जगह बना लीजिए। और कुछ लोग तो ईयरफोन यूज नहीं करते हैं, जैसे हेमा जी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लैपटॉप पे है तो लैपटॉप की आवाज वैसे ही तेज होती है। लेकिन हम बता दें कभी कभी अगर लैपटॉप, हमने एक बार प्रयोग किया था तो हमने लैपटॉप को इतनी ऊंचाई पे रखा था क्योंकि उसका माइक यहाँ पे होता है, तो आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा कई बार। और अब मैं यहाँ बिल्कुल नजदीक खड़ा हूँ तो मेरे मोबाइल में ये चूंकि लेटेस्ट एंड्रॉयड है तो मुझे ईयरफोन की जरूरत नहीं पड़ रही। अगर आपका मोबाइल थोड़ा पुराना है तो ईयरफोन लगाइए। और बहुत चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं, जैसे निधि शुरू में बोलती थी, उसको लगता था सामने वाले को सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ सुनाई देता है। तो दोस्तों यहाँ हम विराम देते हैं। आज मैंने 10-15 मिनट आपके ज्यादा ले लिए, लेकिन क्लास ऐसे ही रहेगी, कभी ज्यादा कभी कम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू, सी यू। Good थैंक यू night, सर। sir. Have a Good nice night, day. sir. गुड नाइट एवरीवन। Good night, everyone. Nidhi, why are you laughing?